میں ہمیشہ اپنی قوم سے سچ بولوں گا. میں کبھی آپ سے وہ بات نہیں کروں گا جو میں نہیں کر سکتا. کہ میں آپ سے وہ بات کروں گا جو میں کر سکتا ہوں. میں ڈرامے آپ سے نہیں کروں گا. یہاں پہ تبدیلی آ گئی ہے. کریں کسی کنسٹیٹوئنسی کو. میں نواز شریف کے سامنے الیکشن لڑوں گا. میں ادھر ادھر کسی میں جاؤں گا. میں نے نواز کے خلاف الیکشن لڑوں گا. عمران خان صاحب مسلسل اپنے انٹرویو میں دہراتے رہے کہ میں تو ایک بال سے گراؤں گا 2 بار. میں تو چاہتا ہوں کہ آصف زرداری اور نواز شریف دونوں سے ایک ہی حلقے میں الیکشن لڑیں. مسلم لیگ نون کی انتخابی فہرست پہلے آ گئی تھی. خان صاحب لڑ لیتے نا لاہور میں ان کے خلاف. میدان سے نکل لیے اور اب ٹی وی پہ بلا رہے ہیں. نہیں, یہ ہماری پارٹی کا فیصلہ تھا, ہماری قیادت کا فیصلہ. پہلے کس کا فیصلہ تھا؟ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ایک ہی حلقے سے نواز شریف صاحب کو. کوئی بات نہیں. میں ڈرامے آپ سے نہیں کروں گا. Heir to billionaire Jewish financier Sir James Goldsmith is part of the Conservative Party leader David Cameron's inner circle. When it came to influencing Muslims from the subcontinent in his constituency, Zach turned to his sister Jemima's former husband Imran Khan. Zach is like younger brother. But I'm not campaigning because he's like a younger brother, but I'm campaigning because I know his views. Imran is one of the only politicians in the world who I know who is not corrupt. It's a very rare thing in politics, not just in Pakistan, but in almost everything. For me, this man is a hero. میں ہمیشہ اپنی قوم سے سچ بولوں گا. کسی پارٹی کے پاس تحریک انصاف جیسی ٹیم نہیں ہے. سب سے بہترین ٹیم, نظریاتی ٹیم, دیانتدار لوگ ہیں. پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جو بھی اس پارٹی کو جوائن کر رہا ہے وہ ہمارے تحریک انصاف کے موقع پہ جوائن. میں کبھی آپ سے وہ بات نہیں کروں گا جو میں نہیں کر سکتا. ہم لوگ ایم پی ایم ایل اے کے لیے ٹکٹ کے لیے آئے اس پارٹی میں. کوئی جھنڈے اٹھانے کے لیے نہیں آ رہا کہ خان صاحب بڑے اچھے ہیں. میں تو پارٹی ٹکٹ کے لیے آیا ہوں. میں سیدھی بات کر رہا ہوں. مجھے یہ خان صاحب اتنے پیارے نہیں ہیں یا پی ٹی آئی مجھے اتنی پیاری نہیں ہے کہ میں یہ جھنڈا اٹھاؤں اور سارا دن پورے لاہور سے گھوم کے کہوں کہ گھر چلا جاؤں. مجھے کوئی کام نہیں ہے. پہلے کہتے تھے جی آپ کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے, اب کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے ان کو کیوں لے لیا. تبدیلی آ گئی ہے. یعنی فیصلہ کریں کہ یا کینڈیڈیٹ لیں یا نہ لیں. آپ میرے سے امید رکھیں چینج. کینڈیڈیٹس بھی کبھی چینج لے کے آئے ہیں. میں ڈرامے آپ سے نہیں کروں گا. یہ تو انہوں نے ایک سیٹ جیتی ہے اور قیامت کھڑی کی ہوئی ہے. ان کا کوئی ہے کاؤنسلر سارے ملک میں. ہم الیکشن لڑے, نواز شریف کے نام لے کے اور اس کے بعد لوٹا ہو کے دوسری طرف چلے جائیں. ایسی حرکت نہیں تھی. میرا خیال ہے اللہ کہ اللہ تمہارا اپنا کوئی نہیں, اللہ سب کا ہے. اللہ لوگوں کو سچ بولنے کی توفیق میں نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. یہ دیکھیں میں ٹی وی پہ کہتا ہوں اللہ مجھے شیخ رشید جیسا کامیاب سیاستدان کبھی نہ کرے. شیخ رشید جیسا بے شرم آدمی سیدھا ٹلی. شیخ رشید جس کو میں اپنا چپڑا سے بھی نہ لگتا. کوئی ہمت نہ ہارو, تبدیلی آ گئی ہے یارو. میرے پاکستانیوں, آپ کی مجھے فکر آپ کی. لا تھے وہ بیٹنگ کرتے. آپ نے اپنی پارٹی کا قرضہ اتارنے کے لیے بیٹنگ کے پیسے استعمال کیے. انہوں نے آپ سے مشورہ مانگا. ناٹ اونلی ڈیڈ ہی کلیئر ہز ڈیٹ بٹ وی میڈ انف منی ٹو کلیئر مائی پارٹیز ڈیٹ ایز ویل. تو پھر اصول پرست عمران خان کے ذریعے پیج 226 عمران خان پاکستان. میں نے اسے کہا کہ میں اپنا تجھے ٹائم دوں گا, بیٹنگ کروں گا, تیرے ساتھ تجھے ایڈوائز کروں گا, لیکن جو تیرا پیسہ اس کے اوپر بنے گا, جو تیرا قرضہ, تیرا لاس پورا ہو گیا, وہ تحریک انصاف کا قرضہ اتارنے میں جائے. کتنا؟ ہم نے 20 لاکھ آخری ہمارا بیٹنگ کا پیسہ استعمال کیا. سو ایون یو نو ہاؤ ٹو مینیپولیٹ. کہ میں آپ سے وہ بات کروں گا جو میں کر سکتا ہوں. انہیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی. ایکسپریس نیوز کے پروگرام بات سے بات میں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. ایسا چند سیاستدان, حمید گل, عمران خان, دوسرے, ایک کوئی فوجی ریٹائر آتا تھا, مجھے میرے ذریعے انقلاب کو لانا چاہتے تھے, استعمال کرنا چاہتے تھے آپ کو. استعمال. میں نے ان کو منع کرا تو مجھے کہا کہ آپ کو بڑجبری سے ہم لے جائیں گے. میں نے ان کو منع کرا تو مجھے کہا کہ آپ کو بڑجبری سے ہم لے جائیں گے. کہ میں آپ سے وہ بات کروں گا جو میں کر سکتا ہوں. آپ وہاں جو آنے نا 70% وہ آنا نہ اور اس کو آپ نے آج یہ دیکھنا لیکن بیلنس کرنا ہے. بیلنس کو بور نہ کر دیں. ہم کیا کریں گے اور نہ سے سن کے بولیے کہ میں آپ سے وہ بات کروں گا جو میں کر سکتا ہوں. میں ڈرامے آپ سے نہیں کروں گا. آپ ریپیٹڈلی سچویشن کو ریڈ نہیں کر پاتے. ڈرونز کو بھی آپ نے رکوانا تھا, نیٹو سپلائز کا بھی معاملہ تھا, سول نافرمانی بھی کرنی تھی لاہور کے اندر, زرداری صاحب کو بھی آپ نے نکالنا تھا. امپریشن آپ کے بارے میں بن رہا ہے وہ یہ کہ یہ ٹو ڈسٹریکٹڈ. جو ہم ڈسٹریکٹڈ ہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. آپ نے پارٹی میں کے اندر لے کے سب کو آپ نے پارٹی کے عہدے دے دی. اگر ایک شاہ محمود ہے, اس کا 30 سال کا پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے. کئی ایسے ہمارے تھے بڑے لائلز ورکرز ہیں, لیکن بدقسمتی سے ان کا لیول, ان کی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ, ان کا ایجوکیشن لیول ان کو لمٹ کر دیتا تھا ایک جگہ پہ جا کے.
अब आप PMLN को फॉलो कर रहे हैं? करता हूँ कि PML की इंटायरली गलती नहीं है ये, करता हूँ कि PML की इंटायरली गलती नहीं है ये। बंदूक नहीं उठाएंगे, मुझे पता नहीं, हमारी पार्टी कभी बंदूक मुझे पता ही नहीं उठाओगे, हमें जरूरत ही नहीं ऐसी लानत फेंकते ऐसी पावर पे आप बंदूक के। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होने वाले जलसे में जदीद असलहे की सरेआम नुमाइश की जाती रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ग्रीन टाउन में जलसा किया जिसमें इमरान खान ने अपने खिताब में पुलिस के निजाम को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। ताहम इस फैसले में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी के बावजूद कारकुनों ने जदीद असलहे की सरेआम नुमाइश की और हथियारों का तबादला भी होता रहा। इस मौके पर पुलिस अफसर भी खामोश तमाशाई बने खड़े रहे और कोई एक्शन नहीं लिया गया। परवेज मुशर्रफ की इस वॉर अगेंस्ट टेरर पूरी दुनिया में एक शख्स वकालत करता था। 9/11 के बाद उनका ये एक अंदाजा था कि हम गलती करेंगे और वो उसका फायदा उठा लेंगे, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने गलती नहीं की। सदर मुशर्रफ ने पॉलिसी वाज़ेह अपनाई जो पाकिस्तान के कौमी मफाद में हो। पूरे टेन्योर में मुशर्रफ के टेन्योर में वॉर अगेंस्ट टेरर के बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन थे, उसके सपोर्टर थे, और आप उसके सपोर्टर नहीं थे। ये बदल गए या आप बदल गए? मैं ड्रामे आपसे नहीं करूंगा। इमरान खान के डबल स्टैंडर्ड है कश्मीर को लेके या नहीं? तो अपने इंडियन फैंस को खुश करने के लिए आप कुछ और बात कहते हैं, पाकिस्तानी ऑडियंस को तो कुछ और बात करते हैं। 30 अक्टूबर को खान साहब की तकरीर जरा सुने, खान साहब आप भी सुनिए। 30 अक्टूबर को आपने कश्मीर के हवाले से क्या बात की थी अपने जलसे में? हिंदुस्तान आपने जो कश्मीरियों में 7 लाख फौज रखी हुई है, मैं ये आपको कह दूं कि कभी भी फौज किसी भी मुल्क का मसला हल नहीं कर सकती। आप 7 लाख फौज जो जुल्म कर रही है शहरियों पे, आप कैसे कामयाब होंगे? कश्मीरियों को उनके हकूक को, फौज को वापस बुलाओ। तहरीक इंसाफ अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी होगी और उनके हकूक के लिए हर फौज में बात करेगी। तब्दीली आ गई है। If you hope to become Prime Minister in 15 months' time, do you have a solution to the Kashmir problem? First of all, it should not be enforced through militancy. It should be political dialogue. And I also believe that we should have other confidence-building measures on the way. We should have trade. We should have more linkages. So it's very sad that Mumbai just when we were back to square one. So therefore, I would like to think that India would sort of start, if it has confidence that there's no militancy coming from Pakistan, there's no militancy coming from Pakistan, it would start withdrawing its army from Kashmir. सारी जिम्मेदारी हम पे डाल दी कि अगर हम मिलिटेंसी नहीं करेंगे तो इंडिया को हम पर कॉन्फिडेंस होगा और फिर इंडिया अपनी ट्रूप्स निकाल लेगा। सर इंडियन ऑडियंस के लिए कुछ इसमें तो ऐसा लग रहा है आप करण थापर को ये कह रहे हैं कि जी हम क्योंकि मिलिटेंसी करते हैं इसलिए अमेरिका इंडिया का कॉन्फिडेंस नहीं। मेरे पाकिस्तानियों आप देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि यहाँ से मिलिटेंट्स गए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि यहाँ से मिलिटेंट्स गए, यहाँ वो मिलिटेंट्स आए और हम ना ट्रेन करके वहाँ भेजते। मैं समझता हूँ कि आज सियासी हाल में कश्मीरों ने अपने ऑटोनमस तो हो जाना, तो वो मैं अमेरिकियों को भी वही कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। If Tehreek Insaf government comes to power, we will insist on there be no militant groups operating within Pakistan, including Jamaat al-Dawa? Exactly. There would not be any militant groups operating within Pakistan. Can I ask, would you name Jamaat al-Dawa, Fala Insaniyat and Hafiz Saeed and say that you put a check to these 3 people? तो वो मैं अमेरिकियों को भी वही कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। Look, I'm living in Pakistan. Pakistan at the moment is the most polarized country in the world. A governor gets shot, his assassin becomes a hero. There's no point in sort of becoming a hero right now in this country where there's no rule of law. Life is very cheap here. जिंदगी बहुत सस्ती है और लॉ एंड ऑर्डर इस मुल्क में नहीं है। मुझे और तुम्हें कहना है कि इनकलाब लाओ। वो उनके नाम लेता है तो कहते हैं यार देखो मैं यहाँ जिंदा रहना चाहता हूँ, बस यहाँ पे बकरी निकला ना मेरा इनकलाबी। वरना ये इंटरव्यू सुनने के बाद मैं तो कह रहा था स्टेट्समैन भी बंदा आ गया यार, जो बंदा जो उसके दिल में कह रहा, मैं तो बकरी हो गया। और साडा क्रिकेट तो रिटायर होया मुंडा की नाम है उसका इमरान खान, गिट्टे गोडे रह गया और नस सकता नहीं, हुण कहता मैं कौम की खिदमत करनी। मैं आखिर जी करो खिदमत तो करनी चाहिए थी, वाकई असी बड़े परेशान हैं। तुझे खिदमत करो लेकिन एक गल याद रखो भाई खिदमत करने का भी कोई तरीका होना। तुझे खिदमत जरूर करो लेकिन गाजी मुमताज नाल मत्था न लाओ। तू उठ के भज के अमरीका को खुश करने वास्ते कह देता यहाँ गवर्नर के कातिल को हीरो बना दिया जाता है। मैं कहा पागला तू जानवर है लम्या, तेन अकल कोई नहीं, गिटे तेरी है। नबी अलैहिस्सलाम के गुलामां नाल मत्थे न ला, वोट ले अपने कौम नाल जिन ठगेबाजियां पहले ठग सानू पेड़ पैन, तू भी ठगा में शामिल हो जा, इंज ना कर हुजूर के गुलामां नाल। मैं हमेशा अपनी कौम से सच बोलूंगा। कराची में गवर्नर कितने 18 कत्ल करके बैठा हुआ है, एजमेर रोड में बैठा हुआ है 234 करके। मुझे अल्ताफ हुसैन की समझ नहीं आती। अल्ताफ हुसैन की पार्टी पाकिस्तान में पावर है, मैं पाकिस्तान में, लेकिन अल्ताफ हुसैन लंदन में क्या कर रहे हैं? तकरीरें टेलीफोन पे कर रहे हैं। मैं तो आज तक कुछ कत्ल नहीं किया, उसने 234 कत्ल किए हुए।
समझे कि अब ये एमक्यूएम बंदूकियां रख के तो मुझे कहेगी जो डरा देगी, जो आपका तशद्दुद और जोर का तरीका मैं जानता हूँ। अगर इसकी जगह ना मुझे ये भी एक लाज देना कि आपको फांसी की सजा होने लगी है, फिर भी अल्ताफ हुसैन के खिलाफ केस में इन्होंने जो कत्ल किए हुए हैं, ये सारी डे बाय डे रिपोर्ट है, जो बोरियों में लाशें डाली हैं, पत्ते लेके पैसा इकट्ठा किया है, दहशत गर्दी की है। पहले कभी वोट डाला आपने? किसको डाली थी पहले? और आप किसको डालेंगे? हमें तो आप एमक्यूएम को छोड़ के क्या पीटीआई को वोट डालेंगे? एमक्यूएम को तो कोई भी नहीं छोड़ सकता, अपनी तब्दीली चाहते हैं, इसके लिए एमक्यूएम ने भी बहुत काम किया है और पीटीआई बनने से खान साहब लंदन गए थे अल्ताफ भाई के लिए केस उनके खिलाफ। और हम एमक्यूएम के साथ थे। और आप किसके साथ हैं? अभी भी एमक्यूएम के साथ हैं। लेकिन आप पीटीआई को सपोर्ट में भुला दिया, माफ कर दिया। कंसर्ट सुनने की मैं ड्रामे आपसे नहीं करूंगा। आपने एक बात कही अल्ताफ हुसैन के खिलाफ, आपने कहा कि उसने कराची में 234 कुछ मर्डर करवाए हुए। आप इस बात पे स्टैंड करते हैं कि नहीं करते? आपने ऐसा कुछ कहा है कि नहीं कहा? आज आप कहें उस पर आप स्टैंड करते हैं कि नहीं करते? कैटेगोरिकली आप आंसर करें। खामोशी खामोश तो है, आप जज्बाती आप क्रिकेट तो खेले होंगे, आप क्रिकेट तो खेले होंगे कभी, आप कभी क्रिकेट तो खेले होंगे, क्रिकेट खेलेंगे कभी? खेलिए ना। I am the PTI worker. I am the fan of Imran Khan. I support Imran Khan. I voted for you. You think कि मैं सवाल नहीं कर सकता? अगर इमरान साहब आप बताएं मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? आप बताएं आपने आपसे सवाल कर सकता हूँ कि नहीं? मुझे सेटिस्फाइड होने दें। आप किसके साथ आए? अरे यार दीदी We will give you a chance. We will give you a chance. Don't worry about that. अरे इमरान खान साहब को तकलीफ नहीं है ना, तो भाई रहने देना। हो सकता है खान साहब जवाब दे रहे हैं तो आप उनको जवाब देने दें प्लीज। इन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा कि मैं आपसे वो बात करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। ये क्रिकेट में एक एक्सप्रेशन होता है, उसे कहते हैं वेल लेफ्ट, वेल लेफ्ट, वेल लेफ्ट। हर गेंद को खेलना नहीं होता बैट्समैन, कई गेंद छोड़ देने चाहिए। मेरे पाकिस्तानियों आपकी फिक्र है, मुझे फिक्र आपकी, तो मेरा आपसे वादा है, तब्दीली आ गई है। मैं रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। रेवोल्यूशन का मतलब स्टेटस को बदलना, ठीक। और आप बैलेट से भी कर सकते हैं, जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया, एमक्यूएम ने किया, एमएमए ने 2002 हमारे सामने। एमक्यूएम ने कराची में क्या रेवोल्यूशनाइज किया? इन द सेंस के उन्होंने एक वेव चला के पावर में आया। आप तो कहते थे अल्ताफ हुसैन ने 234 कत्ल किए। मैं आपकी अपनी स्टेटमेंट और बात कर रहा हूँ, मैं और बात कर रहा हूँ। मैं आपको एमएमए और एमक्यूएम की एक मिसाल ये दे रहा हूँ कि दो मॉडल्स हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड है, आप कैंडिडेट्स बेस्ड पॉलिटिक्स करें, और एक है मूवमेंट के तहत, जिधर आपका कैंडिडेट को, आपकी पार्टी के टिकट को वोट पड़ती है, कैंडिडेट को नहीं पड़ती। एमक्यूएम ने किया और एमएमए ने किया 2002 में। दो एग्जाम्पल जो आप दे रहे हैं पाकिस्तान से, एक एमक्यूएम है और एक जुल्फिकार अली भुट्टो, एमक्यूएम और एमएमए। जो आपसे अवाम के नुमाइंदे जब आते हैं, वोट लेके जाते हैं, बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, उसके बाद वो इन गली मोहल्लों में वापस आते हैं। वो तो सारे चोर है, अपना पेट भर के फिर तो नजर नहीं आते हैं। कोई भी सही नहीं है मुल्क में, अगर है नवाज शरीफ है, मुल्क के लिए भी सही है, गरीब लोगों के लिए भी सही है। इमरान खान ने आज तक अपना सीट नहीं दी, तो नवाज शरीफ का क्या मुकाबला कर सकते हैं? और लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि ये जो लोग आपसे वोट लेके जाते हैं, वो यहाँ पे वापस आते हैं? हमने देखा ही नहीं है वापस। 5 साल हो गया हमारे, मेरे नजर नहीं है, गुम हो गया बेचारा। पीपल पार्टी से खड़ा हो गया तो नजर ही नहीं है। अभी हमारा मैंने स्वाद से खड़ा, मेरे मुकाम नहीं है उसका, उसके लिए इंशाल्लाह हमारा नवाज शरीफ की पार्टी से कुत्ता भी खड़ा होगा, हम उसको वोट देगा, क्योंकि हमारे इलाके में काम किए। इधर पंजाब में कितना काम किया, लेकिन पंजाब के लोग नमक हराम है, ये नहीं समझते। पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने काम किया, लोगों को ये नजर नहीं आते। इमरान खान को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि वो एमक्यूएम के खिलाफ बयान दे, कि दिखाए कि मैं पीपल तहरीक इंसाफ चलाऊंगा। एमक्यूएम के खिलाफ आज तक उसने बयान दिए नहीं दे सकते। वो एमक्यूएम के खिलाफ बयान देगा तो कराची फिर नहीं जा सके, चीते रिपोर्ट पे कहते हैं। वो जो बंदे हुकूमत पे काम कर रहे हैं उसके पीछे लगे। मेरा मुकाबले नवाज शरीफ से वो बोल रहे हैं। नवाज शरीफ ने हमारे स्वाद में गुरुदू का हॉस्पिटल बनाया, बड़ा हॉस्पिटल, इधर मोटरवे बनाया, एटमी धमाके के। नवाज शरीफ ने बहुत कुछ किया, हम आखिर में उसको सलाम करके देते, वो हीरो है पाकिस्तान का। बस शाहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, बाकी कराई के टप्पू है सारे।